Good morning, student. Today we learn about chapter 1 computer system of class 11 computer science. As we previously discussed about what is computer. A computer is electronic device that can program to accept data, process it and generate result. That means a computer is an electronic device which can input data, process data and generate output data. This is the components of the computer system. First, input device takes inputs and second part is processing, that is done in CPU, that is central processing unit, and it will generate output device. Today we will discuss about the computer memory. Okay, so our topic is computer memory. As you know that computer memory is measured in bytes. The unit of memory is a computer system uses binary numbers to store and process data. Binary in the form of 0 and 1. The computer can understand only in binary form. The smallest individual unit is bit, 0 or 1, and 4 bit is equal to 1 nibble. Please note it. 4 bit is equal to 1 nibble and 8 bit is equal to 1 byte. Here you know that measuring of digital data in the bytes, KB, kilobytes, 1 KB is equal to 124 bytes, MB, GB, TB, gigabyte, terabyte, megabytes. You know very well that. Now types of memory. There are two types of memory in computer systems. First is primary and second is secondary. Primary memory, that is the essential component of a computer system. That means without it our computer can't work properly. And there are two types of primary memory, RAM and ROM. That means random access memory and read-only memory. We can classify this type of memory, RAM and ROM. RAM is a volatile memory. That means as long as the power is supplied to the computer, it retain the data, but as soon as the power supply is off, all the component of RAM are wiped out. That means जब भी आपका कंप्यूटर में पावर होगा तब तक डेटा जो है वो रैम में रहेगा, और जैसे ही पावर ऑफ होगा तो डेटा वहाँ से निकाल दिया जाएगा. तो रैम and ROM both are called primary memory. RAM are further classified SRAM and DRAM. SRAM means static RAM and DRAM means dynamic RAM. It can read data and write data, but ROM can only read data. As its name suggests, read only memory. That means it can perform only read operation. And further it can be classified as PROM, programmable ROM, EPROM, erasable and programmable ROM, EEP, ROM, that means electronical erasable programmable ROM. Okay, so this is the classification of the our primary memory.
On other hand, RAM is non-volatile. Okay, RAM is fixed, which means its contents are not lost even when the power is turned off. It is used to as a small but fast permanent storage for the components which are rarely changed. For example, the startup program, bootloader. The startup program is called booting, and one program that complete the process is called bootloader, that loads the operating systems into memory is stored in ROM. That means जब भी हम कंप्यूटर स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले ऑपरेटिंग सिस्टम मेमोरी में लोड होता है. तो ये प्रोसेस जो होती है ये कहलाती है बूटिंग. और ये जो प्रोग्राम जिसके थ्रू किया जाता है दैट इज कॉल्ड बूट लोडर. अगर ये बूट लोडर वर्क नहीं करेगा तो आपका कंप्यूटर स्टार्ट नहीं होगा. एक और तरह की मेमोरी होती है जो कि होती है कैशे मेमोरी. कैशे मेमोरी जो होती है वो रैम से फास्टर होती है. ठीक है, कैशे मेमोरी. इसका अगर डायग्राम अगर आप देखना चाहें ये देखिए मेमोरी यूनिट है. ठीक है, ये कंप्यूटर प्रोसेस है. इनपुट डिवाइसेस, मेमोरी डिवाइसेस, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, कंट्रोल यूनिट, ALU, रजिस्टर्स. और यहाँ मेमोरी और प्रोसेसर्स के बीच में एक मेमोरी और होती है. दिस इज कॉल्ड कैशे मेमोरी. इट इज फास्टर देन रैम. और इसका जो पर्पज होता है, जो फ्रीक्वेंटली आपने जो पेज एक्सेस किया है उसको वो मेमोरी प्रोवाइड करती है. इट स्टोर्ड डेटा, द कॉपीज ऑफ द डेटा फ्रॉम फ्रीक्वेंटली एक्सेस प्राइमरी मेमोरी लोकेशन, थस रिड्यूसिंग द एवरेज टाइम रिक्वायर्ड टू एक्सेस डेटा फ्रॉम प्राइमरी मेमोरी. दैट मीन्स आप जो बार बार डेटा जिसको एक्सेस करते हैं उसको वो कैशे मेमोरी में लोड किया जाता है. तो दैट मीन्स नेक्स्ट टाइम जब भी आपको लोड करना पड़ेगा, यूज करना पड़ेगा, तो उसमें टाइम आपका कम लगेगा. दैट इज कॉल्ड कैशे मेमोरी. ओके, तो ये हो गई आपके प्राइमरी मेमोरी. नाउ सेकेंड टाइप मेमोरी इज सेकेंडरी मेमोरी, SSD. दिस इज कॉल्ड सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस, SSD. अब SSD में कौन कौन से डिवाइस होते हैं? यू नो वेरी वेल. पेन ड्राइव, हार्ड डिस्क, CD ड्राइव, मेमोरी कार्ड्स जो आप मोबाइल कार्ड्स में यूज़ करते हैं वो भी हो सकते हैं, टैप ड्राइव हो सकती है. ठीक है, तो ये डिफरेंट टाइप के डिवाइस जो कि मेमोरी स्टोरेज के पर्पज़ के लिए यूज़ होते हैं. ये आप अपने हिसाब से इसकी कैपेसिटी कम ज़्यादा भी हो सकती है. जैसे हार्ड डिस्क है वो GB में होगी, पेन ड्राइव में आज के टाइम GB में आती है, 2GB, 4GB, 8GB, 16GB, इस ऑर्डर में आगे वो बढ़ती है. इसी तरह से CD ड्राइव है, दैट इज कॉम्पैक्ट डिस्क, और DVD. तो ये सेकेंडरी डिवाइस जो होती है, जितने भी आपका डेटा है, इंफॉर्मेशन है, उसको वो स्टोर करता है. द सेकेंडरी मेमोरी डिवाइस इज नॉन वोलेटाइल एंड हैज लार्जर स्टोरेज कैपेसिटी देन प्राइमरी मेमोरी. करेक्ट है, नॉन वोलेटाइल है. नॉन वोलेटाइल मीन्स अगर पावर ऑफ भी हो जाता है तब भी इंफॉर्मेशन आपकी वहाँ स्टोर रहती है, वो वहाँ पे डिलीट नहीं होगी. एंड हैज़ लार्जर स्टोरेज, तो स्टोरेज तो लार्जर है ही. आप देखिए हार्ड डिस्क आज के टाइम में 1 TB की भी आ रही है. ठीक है ना, तो ज़्यादा से ज़्यादा डेटा को स्टोर करने के लिए आपको सेकेंडरी डिवाइसेस का यूज़ किया जाता है. अब इसमें से कुछ इनके मीनिंग्स हैं. जैसे देखिए SDD, हार्ड डिस्क ड्राइव, CD DVD, कॉम्पैक्ट डिस्क, और DVD है डिजिटल वीडियो डिस्क. तो ये डिफरेंट टाइप के डिवाइसेस है जो मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी को यूज होते हैं. ठीक है, उसके बाद में आता है डेटा ट्रांसफर बिटवीन मेमोरी एंड CPU. मेमोरी और CPU के बीच में डेटा ट्रांसफर होगा कैसे? जैसे
यहाँ से आपने मेमोरी यूनिट लिया है, देखिए मेमोरी यूनिट से इंफॉर्मेशन जो है वो प्रोसेसर में जाता है, प्रोसेसिंग होती है, और प्रोसेसिंग होने के बाद में फिर वापस मेमोरी में रिजल्ट आता है और वापस उसको फिर आउटपुट में दिया जाता है। तो ये सारा जो वर्क है ये किसके थ्रू किया जाता है? ये किया जाता है बस के थ्रू। ए कंप्यूटर सिस्टम यूजिंग फिजिकल वायर्स कॉल्ड बस। ओके, तो बस में यहाँ 3 तरह की बस होती है। फर्स्ट इज डेटा बस, सेकेंड इज एड्रेस बस, एंड थर्ड वन इज कंट्रोल बस। ये देखिए, देर आर 3 टाइप ऑफ बस: कंट्रोल बस, एड्रेस बस एंड डेटा बस। तो सबसे पहले हम बात करते हैं डेटा बस। डेटा बस का पर्पज क्या होता है? जैसे उसका नेम है, इट्स कैरीज डेटा। तो आपका कंप्यूटर सिस्टम कितने बिट का है उतना डेटा वो एक समय में कैरी कर सकती है। 8, 16, 32, 64 बिट्स बाई डायरेक्शनल। बाई डायरेक्शनल का मतलब है कि डेटा आ भी सकता है और जा भी सकता है। बाई डायरेक्शनल डाटा स्टोरेज और लोडेड टू और फ्रॉम द मेमोरी। ये देखिए डेटा बस है और डेटाबेस में ये बाई डायरेक्शनल दिए हैं। तो डेटा बस से आपको इन्फॉर्मेशन सीपीयू में जा सकती है, मेमोरी में जा सकती है, एंड इनपुट आउटपुट में भी इंफॉर्मेशन आ जा सकती है, और ये बाई डायरेक्शनल है सबसे पहली चीज। सेकेंड हम बात करते हैं एड्रेस बस। एड्रेस बस जो होता है, जैसे उसका नेम है, इट्स कैरीज एड्रेस, कि कौन से जितने भी डिवाइसेस होते हैं उन सभी का एड्रेस होता है, उस एड्रेस के अकॉर्डिंग वो डेटा डिलीवर होता है। ठीक वैसे ही जैसे पोस्ट ऑफिस में किस तरह से आप लेटर जब डालते हैं तो सबसे पहले आप एड्रेस लिखते हैं, ठीक है ना। तो एड्रेस जो होता है वो 16 या 32 बिट पैरेलल ये वायर्स होता है, ठीक है। एड्रेस बस यूजेज द ट्रांसमिटिंग एड्रेसेस टू मेमोरी। दैट मीन्स डेटा को कौन से डिवाइस पे लेके जाना है वो एड्रेस लिखा जाता है और वो उसके थ्रू एक्सेस किया जाता है। और एड्रेस बस जो होता है, ध्यान से देखिए, यूनी डायरेक्शनल बस है। यूनी डायरेक्शन का मतलब एक डायरेक्शन में ही वो रन होती है। थर्ड टाइप होती है कंट्रोल सिग्नल, कंट्रोल बस। द सिग्नल्स आर मेंटेनिंग एंड स्टेटस इंफॉर्मेशन। दैट मीन्स वो इंफॉर्मेशन जब आप डेटा को कैरी करके ले जा रहे हैं एड्रेस के साथ, वहां पर अगर वो डिवाइस रेडी है या नहीं है, जब रेडी होगा तो उसकी स्टेट को वो कवर करती है। अगर वो डिवाइस रेडी है तब तो वो इन्फॉर्मेशन जाएगी, अदरवाइज वो वेटिंग में रहती है। तो सेट्स प्रोसेसर इन ए स्पेसिफिक ऑपरेशन मोड, ठीक है ना। ये देखिए एक बार वापस बता देते हैं। फर्स्ट, डेटाबेस टू ट्रांसफर डेटा बिटवीन डिफरेंट कंपोनेंट्स। अब डिफरेंट कंपोनेंट्स कौन कौन से हो जाएंगे हमारे? सीपीयू में जा सकता है, देखिए ये देखिए डेटाबेस बाई डायरेक्शनल है, ठीक है। इसी तरह से मेमोरी में जा सकती है इंफॉर्मेशन। मेमोरी में क्या हो सकता है? रैम में जा सकता है। इसी तरह से रैम में हो सकता है, सेकेंडरी डिवाइसेस हार्ड डिस्क वगैरह इसमें ट्रांसफर हो सकता है डेटा, एंड इनपुट आउटपुट डिवाइस में भी ट्रांसफर हो सकता है। ओके, नेक्स्ट इज एड्रेस बस। एड्रेस बस टू ट्रांसफर एड्रेस बिटवीन सीपीयू एंड main memory. The address of the memory location that the CPU want to read or write from the specified in the address bus. That means address bus का पर्पज क्या होता है? उसको एड्रेस को लेकर जाना है, जितने किस डिवाइस पर जाना है उसका पर्टिकुलर एड्रेस होगा, उस एड्रेस पर वो लेकर जाएगी। इसी तरह से थर्ड बस जो है दैट इज कॉल्ड कंट्रोल बस टू कम्युनिकेट कंट्रोल सिग्नल्स। कंट्रोल सिग्नल्स का मतलब है, इसको आप सिंपल समझिए कि जैसे आप ट्रैफिक सिग्नल्स होते हैं, तो ट्रैफिक सिग्नल्स में क्या होता है, जहां पर भी चौराहा आता है, ठीक है ना, जहां पर 4 रास्ते आ रहे हैं, तो वहां पर क्या होता है, एक समय में एक रास्ता जो है उसको ग्रीन सिग्नल दिया जाता है और बाकी को रोका जाता है टाइमली। तो ठीक वैसे ही डिवाइस के अंदर भी ऐसी तरह से होती है, क्योंकि इंफॉर्मेशन आ रही है और जा रही है, तो उसको किस तरह से कंट्रोल किया जाता है? दिस इज कॉल्ड कंट्रोल सिग्नल to communicates control signals between different components of a computers. So that means
जो इन्फॉर्मेशन आ रही है वो किस ऑर्डर में आएगी, किसको वेट करना है, किसको अलाउ करना है। तो ये सब प्रोसेस देखने का काम जो है वो कंट्रोल बस करती है। ऑल दिस 3 बस कलेक्टिवली मेक द सिस्टम बस, और इन तीनों को हम कलेक्टिवली क्या कहा जाता है, सिस्टम बस। तो ये तीनों बस मिलकर के कहलाती है कंट्रोल सिस्टम बस। कौन कौन सी हो गई, फर्स्ट इज डेटा बस, सेकेंड इज एड्रेस बस, एंड थर्ड वन इज कंट्रोल बस। ठीक है, ये इसका डायग्राम है। तो देख लीजिए, जितने भी आपके कंप्यूटर के कंपोनेंट्स हैं वो सारे के सारे कनेक्ट होते हैं इन सिस्टम बस से। ठीक है, तो इंफॉर्मेशन, एड्रेस और कंट्रोल का मतलब ये सिग्नल्स को चेक करते हैं। ठीक है, तो सीपीयू इस तरह से इंटरेक्ट करता है और वर्क इस तरह से करता है। एज द सीपीयू इंटरेक्ट डायरेक्टली विद द मेन मेमोरी एंड द डेटा एंटर्ड फ्रॉम इनपुट डिवाइस और द डेटा टू बी एक्सेस फ्रॉम हार्ड डिस्क नीड्स टू बी प्लेस्ड इन द मेन मेमोरी। तो इन्फॉर्मेशन आपकी जो है वो सीपीयू टू मेमोरी जा सकती है, मेमोरी टू इनपुट आउटपुट डिवाइस है, तो उसको किस तरह से कैरी करना है वो सारा काम जो है डेटा बस करता है। ठीक है, किस तरह से किया जाता है, एक सिंपल एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज कीबोर्ड से कोई इन्फॉर्मेशन आपने दी, तो वो इन्फॉर्मेशन जाने के बाद, ठीक है, वो इन्फॉर्मेशन के अंदर क्या होगा, फर्स्ट डेटा होगा जो कि डेटा बस कैरी करेगी, एड्रेस होगा कि एड्रेस एग्जैक्टली वो किसको कहाँ जाना है। जैसे फॉर एग्जांपल आपने लिखा 2+2, तो 2+2 पहले इनपुट डिवाइस से होते हुए आपके प्रोसेसर में जाएगी। तो इसका एड्रेस कहाँ लिखा जाएगा, या तो मेमोरी में लिखा जाएगा और मेमोरी से प्रोसेसर में लिखा जाएगा, तो इसका एड्रेस बस। नेक्स्ट थर्ड बस जो है कंट्रोल बस, वो क्या करेगी, वो चेक करेगी प्रोसेसर पहले बिजी तो नहीं है, अगर बिजी है तो कुछ सेकंड्स के लिए उसको वेट करती है। अब सेकंड में भी क्या होता है, ये मिली सेकंड में होता है, तो हमें पता भी नहीं चलता है कि हमारा इंस्ट्रक्शन कितना फास्ट हो रहा है। ठीक है ना, तो ये इंस्ट्रक्शन इस तरह से, तो ये तीनों बसें यूज किए जाते हैं, फिर प्रोसेस किया जाता है और प्रोसेस होने के बाद डेटा को आगे प्रोसेस करके आपको आउटपुट दिया जाता है। तो इस तरह से ये बस सिस्टम आपका वर्क करता है।